Hello everyone, today we will start a new unit, complex number. Before moving forward, we will begin with numbers. Let's take a look on simple equation, that is x minus 2 equals to 0, which gives the result x equals to 2. As we know, this is the natural number and denoted by n. The next equation is x square minus 3x equals to 0. Here x equals to 0 and x equals to 3. This number is known as whole number and denoted by w. Next equation is x square plus x minus 6 equals to 0. This is quadratic equation. We factorize this equation in form of x minus 2 and x plus 3 equal to 0. The value of x is 2 and minus 3. This number is called as an integer and denoted by z. Here we take another equation, that is 4x square equal to 9. So the value of x is plus minus 3 by 2. This number is called as a rational number and denoted by q. Our next equation is x square minus 2 equal to 0. Let's think about this equation. X square equal to 2 means x equals to plus minus under root of 2. This is called irrational number. And next equation, we just think about this equation. This is x square plus 9 equal to 0. As we already know, the general formula of quadratic equation is ax square plus bx plus c equals to 0. We compare both the equation. We get the value of a is 1, b is 0 and c is 9. For finding the value of x, we use the formula minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a. b square minus 4ac is denoted by d and called as discriminant. If d is less than 0, we conclude there is no real root. If d is equal to 0, we say equation contains one real root. If d is greater than 0, means the equation have two distinct real root. In this particular questions, the value of d is less than 0. Based on what we studied earlier, we said there is no real root because of d is less than 0. Means in real number, a square root of negative is not defined. To solve this problem, here comes imaginary number. It is denoted by simple a small letter I, and the value of I is under root of minus 1 and called as a iota. Iota is a Greek word. Square root of negative term जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम था, उसे हमने रिप्लेस कर दिया है अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 1 एंड माइनस 1 को हमने सेपरेट करके लिख दिया अंडर रूट ऑफ 9 इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस 1 एंड अंडर रूट ऑफ माइनस 1 किसकी वैल्यू है? ये है आपकी वैल्यू आई की. इसे ही हम क्या बोल रहे हैं? इमेजिनरी नंबर. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या इंट्रोड्यूस हुआ? इमेजिनरी नंबर इंट्रोड्यूस हुआ. ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट ऑफ 9 आई एंड अंडर रूट ऑफ 9, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है तो हम यहाँ पे इसका अंडर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 3. तो ये हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया कि हम अब बोल सकते हैं वी आर एबल टू सॉल्व स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर विद द हेल्प ऑफ इमेजिनरी नंबर्स. ठीक है.
तो अब हम नेक्स्ट आगे देखेंगे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर। अभी हमने देखा कि द वैल्यू ऑफ आई इज़ अंडर रूट ऑफ -1 और इसे हम आयोटा बोलते हैं। आई स्क्वायर इक्वल टू -1. Generally these arise in the mind. Why the value of I square is -1? So here is the answer. As we know the property of real number, under root of a into under root of b equal to under root of ab. This property is applicable only when both a and b is greater than 0, और हम ये बोल सकते हैं कि at least one of a and b is either positive or 0. Let's take an equation for better understanding. X square plus 25 equals to 0 means x square equal to -25. Square root of negative term is not possible in real number. तो यहाँ पे हम इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव टर्म नहीं हो सकता है, इसलिए रियल नंबर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था। अब हम इसे किसी दूसरे वर्ड्स में ऐसा भी समझ सकते हैं कि किसी दो रियल नंबर को, यहाँ पे पहला रियल नंबर हमने a लिया है और दूसरा रियल नंबर हमारा b है, किसी भी दो रियल नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो उनका रिजल्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता। मान लेते हैं कि हमारे पास जो दो रियल नंबर हैं, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू हमने -3 ली हुई है, तो 2 का स्क्वायर दैट मीन्स कितना हो गया आपका 4 एंड -3 का स्क्वायर इसका मतलब कितना हो गया 9। भले ही वो नेगेटिव टर्म था, लेकिन जब हमने उसका स्क्वायर किया तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव टर्म मिलेगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कभी भी वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये तभी पॉसिबल होगा रियल नंबर में व्हेन a एंड b बोथ आर इक्वल टू 0। दोनों ही 0 होना चाहिए तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो रियल नंबर में इस टर्म का कोई भी सॉल्यूशन नहीं था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक इमेजिनरी नंबर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया और उस इमेजिनरी नंबर को हमने बोला आई। तो हमने देखिए यहाँ पे -25 को किस फॉर्म पे लिख दिया है, 25 इंटू -1 के फॉर्म पे लिख दिया, क्योंकि वी नो द वैल्यू ऑफ -1। -1 अगर अंडर रूट में है तो हम उसको किससे डिनोट कर दे रहे हैं, आई से या आयोटा से। तो हमने यहाँ पे उसी फॉर्म पे इसको रिप्रेजेंट किया है। अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे एक इमेजिनरी नंबर को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो अंडर रूट ऑफ 25 इंटू अंडर रूट ऑफ -1 की वैल्यू आपने क्या पुटअप कर दी, आई। तो अंडर रूट ऑफ 25 क्योंकि अब ये पॉजिटिव हो गया एंड पॉजिटिव का स्क्वायर रूट निकालना हमें आता है और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 5 है और आई आपका एज इट इज हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। This is the reason to introduce complex number. So what is complex number? It is a combination of real and imaginary part. यहाँ पे हमने एक फॉर्म लिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा x प्लस आई वाई के फॉर्म पे होता है, जहाँ पे i की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ -1 के फॉर्म पे होती है और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम z से। तो x प्लस आई वाई ही क्या कहलाता है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। यहाँ पे x एंड y बोथ आर बिलोंगिंग टू रियल नंबर और x को हम डिनोट करते हैं रियल पार्ट से और y डिनोट करते हैं इमेजिनरी पार्ट से। x इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z और इसे हम rz के फॉर्म पे लिख सकते हैं एंड y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और इसे हम iz के फॉर्म पे लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे लेट्स कंसीडर वन कॉम्प्लेक्स नंबर और वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया है 2 + i3। 2 + i3 में रियल पार्ट आपका कौन सा है, 2 एंड इमेजिनरी पार्ट कौन सा है आपका 3। तो कभी भी हम 3i नहीं बोलेंगे, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स जो है या y की वैल्यू जो है वो कौन सी है आपकी 3 है, ठीक है, ना कि 3i। तो रियल पार्ट हो गया और इमेजिनरी पार्ट हो गया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। सपोज हमारा रियल पार्ट यहाँ पे मिसिंग है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कहलाएगा और सपोज यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट मिसिंग है तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्योरली रियल नंबर बोलते हैं। तो इन सिंपल वर्ड
कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। और यहाँ पे एक्स वाई कैसे होंगे, आपके रियल नंबर होंगे, और आई की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ -1। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफरेंट फॉर्म पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखेंगे। और इसमें हम 3 फॉर्म देखेंगे। फर्स्ट इज़ कार्टेशियन फॉर्म, सेकेंड इज़ पोलर फॉर्म एंड थर्ड इज़ आइलर फॉर्म। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।